अस्सलामुअलैकुम। तो बेटा कैसे हो आप सब? बेटा जैसे कि आपको पता है हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं और एनिमल किंगडम में जो नेक्स्ट फाइलम है, जो नेक्स्ट ग्रुप है, उसका नाम मेरा बेटा सीलियन ट्रेटा। और सीलियन ट्रेटा के बारे में सबसे पहली बात ओब्वियस सी कि इट इज एन एनिमल। जो सीलियन ट्रेटा है ये एनिमल है। एंड देन यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनिमल, दोज फोर कंडीशंस like multicellular, cell wall-less, eukaryotic, and heterotrophic, as we have discussed in the previous lecture. Mera beta, the next point about the Syrian treta is it is also known as it is also known as Cnidaria. So beta, as you know, I have told you that Porifera is also known as sponge. Similarly, the Celian treta is also known as Cnidaria. The next point about Celian treta beta is that Celian treta is marine, as Porifera was marine. By saying marine, I mean to say they live in salty water. As I told you, Porifera also lives in salty water. And then, mere bete, about Celian treta, there's a typical thing that some Celian treta, they are sessile and some are motile. कुछ सीलन ट्रेटा क्या है, वो सिसाइल है। क्या मतलब सिसाइल का? वो चल नहीं सकते, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एंड सम फॉर्म्स दे आर मोटाइल, दे कैन मूव. एज आई टोल्ड यू कि पोरिफेरा है वो सिर्फ सारे के सारे सिसाइल है. लेकिन बेटा नाइडेरिया के बारे में, सीलियन ट्रेटा के बारे में आपको बताता चलूं, कुछ सिसाइल है और कुछ मोटाइल है. और मेरे बेटे वो वाला फॉर्म सीलियन ट्रेटा का, वो वाला फॉर्म नाइडेरिया का जो सिसाइल है बेटा, हम उसको कहते हैं पॉलिप. एंड दैट फॉर्म ऑफ सीलियन ट्रेटा, दैट फॉर्म ऑफ नाइडेरिया which is motile, मेरा बेटा we call that as medusa. So बेटा आप मेरे साथ पढ़िएगा, एक है पॉलिप और दूसरा है मेड्यूसा. आपको कोई बंदा पूछेगा व्हाट इज पॉलिप, व्हाट इज मेड्यूसा. पॉलिप भी सीलन ट्रेटा है, मेड्यूसा भी सीलन ट्रेटा है. लेकिन पॉलिप एक ऐसा सीलन ट्रेटा है जो सिसाइल है, जो चल नहीं सकता. एंड मेड्यूसा एक ऐसा सीलन ट्रेटा है which has the capacity, which has the capability to move. So that is about the polyp and the medusa. Mera beta, the next point about the Celian treta is the Celian treta shows tissue level of organization. Tissue level of organization. Beta, as you remember, as we have discussed in previous lecture, in Porifera, I told you, Porifera shows cellular level of organization. जहां मैंने कहा ये एक सेल थी, ये एक सेल थी, but these two cells were not interacting. ये आपस में इंटरैक्ट नहीं करते थे, ये आपस में हाई हेलो नहीं बोलते थे. वो पोरिफेरा के अंदर था, whether two cells were not interacting, और उसको हमने कहा था cellular level of organization. While as मेरा बेटा in Cnidaria, in Celian treta, yes, there is a cell. Yes, there is another cell. But right now, these cells are interacting with each other. They are saying hi, hello to each other. Such type of level of organization where the cells are interacting with each other, we call that as tissue level of organization. So mera beta, if anyone asks you what is the difference between cellular level of organization and tissue level of organization, yes, in cellular level of organization there are many cells. In here there are many cells. But the difference is, in cellular level of organization, the cells do not say hi, hello. The cells do not interact with each other, while as in tissue level of organization, the cells do interact with each other. That is about the Celian treta, that in here, the cells do interact with each other. Mera beta, the next point about Celian treta is that Celian treta again is diploblast. अगर आपको याद होगा बेटा, पोरिफेरा के अंदर मैंने आपसे बोला
जो पोरेफेरा है वो डिप्लोब्लास्ट है। क्या मतलब डिप्लोब्लास्ट? जब मैंने कहा बिटवीन जाइगोट और जो अडल्ट है वहां पे बीच में एक 3 लेयर बनता है। जो टॉप मोस्ट लेयर है वो सेल वाली लेयर है जिसको हमने एक्टोडर्म बोला है। जो बीच वाली लेयर है वो प्रोटीन वाली लेयर है जिसको हम मेसोग्लिया कहते हैं। और जो लोअर वाली लेयर है वो अगेन सेल लेयर है जिसको हमने एंडोडर्म बोला है। सो मेरे बेटे, लाइक पोरेफेरा, the coelenterata is again diploblast where there are 3 layers: the cell layer, the protein layer, the cell layer. Fine. So मेरा बेटा, let's move to the next point. बेटे, अगर आपको याद होगा मैंने आपको कहा the cell of nervous system is known as neuron, the cell of kidney is known as nephron, the cell of porifera is known as choanocyte or collar cell. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बोला। सिमिलरली मेरे बेटे, द सेल ऑफ नाइडेरिया, द सेल ऑफ सीलेंट्रेटा मेरा बेटा इज नोन एज नाइडोब्लास्ट। मैं स्पेलिंग बोलूंगा आपको बेटा, CNIDOBLAST, नाइडोब्लास्ट। इसका दूसरा नाम मेरे बेटे नाइडोसिस्ट, CINOCNIDOCYST, नाइडोसिस्ट। इसका तीसरा नाम मेरा बेटा निमैटोब्लास्ट, NEMATO, निमैटोब्लास्ट, BLAST, ब्लास्ट। इसका चौथा नाम मेरा बेटा निमैटोसिस्ट। एंड इसका पांचवा नाम मेरा बेटा स्टिंगिंग कैप्सूल, STINGING, stinging capsule. So मेरा बेटा, if anyone asks you what is the name of the cell of the nidaria, name of the cell of the coelenterata, मेरा बेटा, the name of the cell of the coelenterata is nidoblast, nidocyst, nematoblast, nematocyst or stinging capsule. Fine. एंड देन हियर बेटा आई शुड बी टेलिंग यू, इस सेल का कोई ना कोई जो फंक्शन होगा ना नाइडेरिया के अंदर, ये कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी ना मेरा बेटा। इट हेल्प्स नाइडेरिया इन एनकरेज। क्या मतलब एनकरेज? यानी पकड़ने में, जकड़ने में हेल्प करती है, किसी चीज को ग्रैब करने में हेल्प करती है, यही वाली सेल नाइडोब्लास्ट। फॉर एग्जाम्पल कोई एनिमी है उसको ग्रैब करो, कोई चीज है यानी इसको अपने आप को स्टेबल करना है, एक जगह बैठना है, इट गेट्स होल्ड ड्यू टू दिस नाइडोब्लास्ट एंड दैट इज द फर्स्ट फंक्शन दैट इट हेल्प्स इन एनकरेज। द नंबर नेक्स्ट फंक्शन मेरा बेटा इज इट हेल्प्स इन डिफेंस। कोई एनिमी आ गया नाइडेरिया को मारने, तो बेटा नाइडेरिया अपने आप को कैसे बचाता है? इट प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ with its arm or with its cell. The cell name is nidoblast. So nidoblast again मेरे बेटे, it helps us in defense and besides it also helps us in capture of prey. So ये capture of prey यानी शिकार करता है यही सेल और इसको बचाता भी है यही सेल और एनकरेज में भी मेरा बेटा यही नाइडोब्लास्ट coelenterata को हेल्प करता है। Having said that, मेरा बेटा, the next point about the coelenterata is the coelenterata body cavity is known as gastrovascular cavity. Gastrovascular cavity. चलो मैं आपको दिखाता हूं कैसे gastrovascular cavity। देखो बेटा, ये मैं बना रहा हूं coelenterata, ये इसका स्ट्रक्चर है बेटा। जो ये वाली कैविटी है बीच में, जो ये बॉडी कैविटी है, इस बॉडी कैविटी को हम कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। अगर आपको याद होगा बेटा, मैंने आपको कहा पोरेफेरा के अंदर भी एक ऐसी कैविटी थी, उस कैविटी का नाम हमने दिया स्पोंगोसील। यहां पे बेटा जो कैविटी है, इस कैविटी को हम कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। So, if anyone asks you what is the gastrovascular cavity, मेरा बेटा, the gastrovascular cavity is the cavity of the nidaria, is the cavity of the coelenterata. बेटा अगर आप फोकस करोगे यहां पे, जो ये gastrovascular cavity है, इसको बस एक ओपनिंग है यहां पे टॉप पे। This opening
of the gastrovascular cavity in the nidaria, मेरा बेटा, is known as hypostome. मैं आपको इसकी स्पेलिंग बोलता हूं बेटा, hypostome, HYPOSTOME. So मेरे बेटे, if anyone asks you what is hypostome, hypostome is the opening of the nidaria. जैसा आपको पता है पोरेफेरा के अंदर भी ओपनिंग थी, लेकिन मेरे बेटे पोरेफेरा के अंदर दो ओपनिंग थी, एक तो था ऑस्टिया और दूसरा तो था ऑस्क्यूलम. अगर आपको कोई कहे इंसान के अंदर कितनी ओपनिंग, हमारे पास भी दो ओपनिंग. वन इज द माउथ पोर एंड अनदर मेरा बेटा इज द इनर पोर. Similarly, मेरे बेटे, in nidaria, there is also opening and there is only a single opening in the nidaria. That single opening in the nidaria, मेरा बेटा, is known as hypostome. Having said that, I have to tell you an important point, मेरा बेटा, in Coelenterata, the digestion is both intracellular digestion and extracellular digestion. बेटा क्या मतलब इंट्रासेलुलर डाइजेशन? इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब जो फूड है वो पहले सेल खाती है और सेल के अंदर फूड को डाइजेस्ट किया जाता है, फूड को डिवाइड किया जाता है. यानी कि इन नाइडेरिया जो फूड है इसको डाइजेस्ट विद इन सेल किया जाता है, इंट्रासेलुलर. लेकिन उसके साथ साथ बेटा कुछ खाने को, कुछ फूड को सेल के बाहर ही डाइजेस्ट किया जाता है, सेल के बाहर ही पहले तोड़ा जाता है, उसके बाद अंदर लाया जाता है. सो दैट इज मेरा बेटा एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू इज दैट मेरा बेटा इन Coelenterata देयर इज बोथ इंट्रासेल्युलर डाइजेशन यानी विद इन द सेल ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, और extracellular digestion, that's outside the cell, the food is being digested, the food is being broken down into pieces. So that is the next point. मेरे बेटे, as I told you, जो इंसान है हमारे स्केलेटन का नाम है either it is bone, जो हमारा स्केलेटन है या तो ये हड्डियां हैं या कार्टिलेज है, जैसे आप सबको पता है. और मैंने आपको कल कहा कि पोरेफेरा जो है, पोरेफेरा के अंदर जो स्केलेटन है वो बोन नहीं है, वो कार्टिलेज नहीं है, तो वहां पे क्या है? वहां पे स्पॉन्गिन फाइबर है, वहां पे स्पाइक्यूल है. मेरे बेटे, सिमिलरली इन द नाइडेरिया, इन द Coelenterata, द स्केलेटन इज नोन एज कोरल. द स्केलेटन इज नोन एज कोरल. और मेरा बेटा जो स्केलेटन है ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का. So मेरे बेटे, if anyone asks you what is coral, coral is skeleton of nidaria. और एक किस चीज का बना है? एक कैल्शियम कार्बोनेट का बना है. लेकिन बेटा यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता चलूं, ये एक्सोस्केलेटन है. एक्सोस्केलेटन का मतलब वो वाला स्केलेटन जो बाहर से ही दिखे. फॉर एग्जाम्पल जो हमारे नेल है ये बाहर से ही दिखते हैं, दीज आर एक्सोस्केलेटन. वाइल जो हमारी हड्डियां हैं वो अंदर है, देयरफॉर दैट इज एंडोस्केलेटन. वाइल एज मेरा बेटा जो कोरल है इट इज एक्सोस्केलेटन, यानी बाहर से ही होता है, ये बॉडी के अंदर नहीं है. सो मेरे बेटे, इफ नाउ एनीवन आस्क्स यू व्हाट इज द कोरल, गेट दिस थिंग स्ट्रेट. इट्स अ स्केलेटन made of calcium carbonate in the nidaria, in the Coelenterata, but it is exoskeleton. It is not endo, it is not present within the body, it is present from outside. Fine? So, mera beta, that is about the coral made of calcium carbonate. Mera beta, the another important point about the Coelenterata is that Coelenterata shows a phenomenon known as polymorphism or dimorphism. देखो मेरा बेटा, क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म, क्या होता है डायमॉर्फिज्म, आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा. मेरे बेटे, यहां पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया है नाइडेरिया का. बेटा कुछ नाइडेरिया ऐसे होता है, यानी सिलेंड्रिकल होता है, जो गैस सिलेंडर है ना वैसा ही दिखता है. और कुछ नाइडेरिया मेरे बच्चे होता है अम्ब्रेला शेप्ड. मेरा बच्चा, ऐसा फेनोमेनन जहां पे एक ऑर्गेनिज्म के
एक से ज्यादा बॉडी फॉर्म्स हो, यानी कुछ सिलिंड्रिकल दिखें, कुछ अम्ब्रेला जैसे दिखें। देखो बेटा, अगर आप इंसान को देखोगे, हम सब इंसान एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन मेरा बेटा जो सिलेंड्रेटा है, नाइडेरिया, ये सारे के सारे एक जैसे नहीं होते। कुछ बेटा सिलिंड्रिकल होता है और कुछ मेरा बेटा अम्ब्रेला शेप्ड होता है। मेरा बेटा ऐसे फेनोमेनन को वायर एन ऑर्गेनिज्म हैज द प्रॉपर्टी, हैज द एबिलिटी दैट सम ऑफ इट्स ऑर्गेनिजम्स have the cylindrical body form and some of its organisms have the shape of umbrella. मेरा बेटा, this phenomenon is known as polymorphism or dimorphism. So if anyone, मेरा बेटा, asks you what is the polymorphism, it is a mechanism, rather is a phenomenon where an organism can exist in more than one body form. एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा बॉडी फॉर्म अटेन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ सिलिंड्रिकल दिखेंगे, कुछ अम्ब्रेला जैसे दिखेंगे। सच फेनोमेना मेरा बेटा इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। और बेटा यहां पे मैं आपको बताता चलूं, जो नाइडेरिया सिलिंड्रिकल होता है, उस नाइडेरिया को बेटा हम कहते हैं पॉलिप। मैंने आपको इससे पहले भी बोला बेटा, जो पॉलिप है ये सिसाइल होता है, ये चल नहीं पाता। और मेरे बेटे, वो वाला नाइडेरिया जो अम्ब्रेला शेप्ड होता है, उसको हम कहते हैं बेटा मेड्यूसा। सो मैंने आपको पहले भी बोला बेटा, जो मेड्यूसा है वो मोटाइल होता है। सो बेटा, अगर आज से आपको कोई कहेगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉलिप एंड मेड्यूसा, अभी के लिए दो डिफरेंस। पहला, अगर यहां से पॉलिप हम रखेंगे, यहां से मेड्यूसा रखेंगे। बेटा जो पॉलिप है इज अ नाइडेरिया, मेड्यूसा इज अगेन अ नाइडेरिया। देन व्हाट इज द डिफरेंस? बेटा जो पॉलिप है, पॉलिप इज सेसाइल, मेडुसा इज मोटाइल। पॉलिप इज सिलेंड्रिकल while as the medusa is umbrella shaped. So मेरा बेटा, कौन कौन सा पॉलिप ये दिस नाइडेरिया पॉलिप है, हम कुछ एग्जाम्पल बोलेंगे। एक बेटा है हमारा हाइड्रा। जो हाइड्रा है ये पॉलिप है। क्या मतलब पॉलिप है? मतलब एक तो जाहिर ये सेसाइल है और दूसरी बात ये सिलेंड्रिकल है। और मेरे बेटे, हमारे पास और एक नाइडेरिया है जिसका नाम अडैम्सिया है, वो भी पॉलिप है। सिमिलरली मेरे बेटे, जो मेड्यूसा है, इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है ऑरेलिया, जिसका दूसरा नाम मेरे बेटे जेलीफिश। सो मेरे बेटे, अगर आपको आज से कोई बंदा पूछेगा व्हाट यू नो अबाउट ऑरेलिया और व्हाट यू नो अबाउट जेलीफिश, आप उससे बोलिएगा कि जेलीफिश और ऑरेलिया इट इज मेड्यूसा। बाद में अगर वो आपसे पूछेगा व्हाट इज मेड्यूसा, आप कहोगे मेड्यूसा एक नाइडेरिया है। कैसा नाइडेरिया है? जो मोटाइल है, जो चल सकता है। बिसाइड्स बीइंग मोटाइल, इट इज आल्सो अम्ब्रेला शेप्ड। फाइन। सिमिलरली अगर आपसे कोई बंदा पूछेगा हाइड्रा के बारे में कुछ बोलो, बेटा पहली बात जो आप कहोगे कि हाइड्रा इज पॉलिप। वो क्या मतलब पॉलिप? आप कहिएगा उनसे कि पॉलिप एक ऐसा फॉर्म है जो सिलिंड्रिकल है और जो सिसाइल है। फाइन। सो मेरे बेटे, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। सो मेरा बेटा, द नेक्स्ट पॉइंट अगेन इज अबाउट पॉलिप एंड मेडुसा। बेटा जो पॉलिप है, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, और मेड्यूसा, हमने अभी इनके दरमियान दो डिफरेंस बोली। पहली डिफरेंस बेटा, ये जो पॉलिप है ये जी सिसाइल है, दूसरी सिसाइल है। और जो मेड्यूसा बेटा ये मोटाइल है, यानी चल पाता है। जो बेटा जो पॉलिप है, इसके बारे में हमने बोला ये सिलिंड्रिकल है, यानी इसकी बॉडी शेप सिलिंड्रिकल है, गैस सिलेंडर जैसी है। और मेरा बेटा जो मेड्यूसा है ये अम्ब्रेला शेप्ड है। ये दो डिफरेंस हमने पॉलिप के बारे में बोले। बट देयर इज अनदर डिफरेंस बिटवीन पॉलिप एंड मेडुसा, दैट इज मेरा बेटा, पॉलिप ऑलवेज रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली। ये हमेशा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। यहां पे मेल और फीमेल की जरूरत नहीं पड़ती, यहां पे गमीट्स की जरूरत नहीं पड़ती पॉलिप को। आपको बात समझ आ रही है? वाइल इज मेरा बेटा मेडुसा जो है इट रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली। By saying sexually, I mean to say it requires gametes, it requires sperm, it requires ova. So मेरा बेटा, now there are three differences between polyp and medusa. One is sessile,
it is motile, it is cylindrical, it is umbrella shaped, it reproduces asexually while as it reproduces sexually. Fine. So मेरा बेटा, let's move to next point. देखो बेटा, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मुझे आपको समझाना है. कंसेप्ट इस तरह है मेरा बेटा, अगर एक नाइडेरिया एज पॉलिप पैदा हुआ, यानी अगर एक नाइडेरिया पॉलिप है, यानी सिलेंड्रिकल है, सिसाइल है, एसेक्सुअल प्रोड्यूस करता है, यूजुअली ये नाइडेरिया हमेशा पॉलिप ही रहेगा. ऑलवेज इट रिमेन एज अ पॉलिप, यानी जैसा पैदा हुआ वैसा ही रहेगा. या मेरे बेटे, अगर हमारा नाइडेरिया एज मेडुसा पैदा हुआ है, दिस नाइडेरिया विल ऑलवेज रिमेन एज मेडुसा. सो जो नाइडेरिया पॉलिप पैदा हुआ वो पॉलिप ही रहता है, जो नाइडेरिया मेडुसा पैदा हुआ वो मेडुसा ही रहता है. लेकिन बेटा एक्सेप्ट इन वन ऑर्गेनिज्म मेरा बेटा, जिसका नाम ओबेलिया, OBELIA. बेटा ओबेलिया के अंदर एक टिपिकल फिनोमेनन होता है. ओबेलिया मेरा बच्चा इनिशियली पॉलिप होता है, यानी इनिशियली वो सिलेंड्रिकल होता है, लेकिन मेरे बेटे लेटर इन द लाइफ ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू मेडुसा, यानी सिलेंड्रिकल से अम्ब्रेला शेप्ड बनता है. एंड देन मेरे बेटे फ्रॉम मेडुसा it again gets back converted into the polyp. मेरे बेटे, this phenomenon in Obelia where the polyp gets converted into medusa, मेरा बेटा, is known as, I will write down here, is known as alternation of generation. Is known as alternation of generation, or what we call it as metagenesis. मेटाजेनेसिस. सो मेरे बेटे, आप मेरे साथ पढ़ेगा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस. सो इफ एनीवन आस्क्स यू व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस, आप उनसे पूछेगा, आप उनसे बोलेगा, एक ऐसा फेनोमेनन है जो ओबेलिया के अंदर होता है. वहां पे क्या होता है, द पॉलिप जो यूजुअली एज अ पॉलिप ही रहना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या होता है, इस वाले फेनोमेनन के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है मेडुसा के अंदर. एंड देन जो मेडुसा बना वो वापस कन्वर्ट हो जाता है इनटू द पॉलिप. एंड दिस फेनोमेनन मेरा बेटा इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस. लेकिन बेटा यहां मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा. बेटा अगर ये पॉलिप है, अगर ये मेडुसा है, क्या आप मुझसे बोलेंगे, कैन यू टेल मी, अगर पॉलिप को मेडुसा के अंदर कन्वर्ट होना है, क्या ये सेक्सुअली कन्वर्ट होगा मेडुसा के अंदर और एसेक्सुअली? टेल मी, शुड दिस पॉलिप गेट कन्वर्टेड इनटू मेडुसा सेक्सुअली और एसेक्सुअली? ऑब्वियसली बात बेटा, एसेक्सुअली. व्हाई? बिकॉज पॉलिप ऑलवेज शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड देन मेरे बेटे, दिस मेडुसा इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पॉलिप. शुड दिस हैपन सेक्सुअली और एसेक्सुअली? ऑब्वियसली बात बेटे, सेक्सुअली, बिकॉज अगर मेडुसा को कभी भी रिप्रोड्यूस करना है, इट हैज टू शो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो मेरे बेटे, दैट इज ऑल अबाउट द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऑल अबाउट द मेटाजेनेसिस. एक ऐसा फेनोमेनन जो यूजुअली होना नहीं चाहिए, जो किसी नाइडेरिया के अंदर नहीं होता एक्सेप्ट ओबेलिया. वहां पे एक ऐसा फेनोमेनन हुआ जो पॉलिप है, अचानक से चेंज हुआ बेटा इनटू मेडुसा, एंड देन जो मेडुसा बना वो वापस पॉलिप के अंदर कन्वर्ट हुआ. मेरे बेटे, दिस फेनोमेनन, दिस मैकेनिज्म वी कॉल एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. मेरे बेटे, having said this much about Nidaria, the next point is examples. इन्हें कौन कौन नाइडेरिया के अंदर आता है, और बेटा उसके अंदर जो एग्जाम्पल्स है, सबसे पहली एग्जाम्पल इज फाइसेलिया, जिसका दूसरा नाम है मेरे बेटे पुर्तगीज मैन ऑफ वर. ये आपके एनसीईआरटी पे लिखे एग्जाम्पल्स, तो बेटा वहां से आप नोट डाउन कीजिएगा. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरा बेटा इज एडामसिया, जिसका दूसरा नाम है सी एनिमोन. द नंबर नेक्स्ट पॉइंट बेटा इज पेनाट्यूला, पेनाट्यूला, जिसका दूसरा नाम मेरा बेटा है सी पेन. द नंबर नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरे बेटे इज गॉर्गोनिया, गॉर्गोनिया, जिसका दूसरा नाम मेरा बेटा है सी फैन.
एंड नंबर नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरे बेटे इज मियनड्रिना, जिसका दूसरा नाम मेरे बेटे है ब्रेन कोरल, कोराल। सो मेरे बेटे आप मेरे साथ पढ़ेंगे ये सारे एग्जाम्पल्स। ये फाइसेलिया है, फाइसेलिया। इसका दूसरा नाम पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। दूसरा एग्जाम्पल मेरा बेटा है एडेम्सिया, इसका दूसरा नाम सी एनिमोन। नेक्स्ट एग्जाम्पल पेनाट्यूला, पेनाट्यूला, दूसरा नाम सीबेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गॉर्गोनिया, दूसरा नाम सी फैन। नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरा बेटा इज मियनड्रिना, जिसका दूसरा नाम मेरा बेटा इज द ब्रेन कोरल। सो मेरे बेटे that is about the Cnidaria, that's about the Cilian Trata. Let's revise whole Cilian Trata again. पहली बात एनिमल है, दूसरा नाम नाइडेरिया है, मरीन है, सॉल्टी वाटर के अंदर रहता है, चल नहीं सकता, चल भी सकता है, अगर नहीं चल सकता उसको पॉलिप कहेगा, चलेगा तो मेडुसा कहलाएगा। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां सेल्स इंटरैक्ट करती है, जहां सेल्स हाय हेलो कहती हैं। डिप्लोब्लास्ट, जैसा हमें पता है, वो जो यहाँ पे सेल है उसका नाम नाइडोब्लास्ट है, और जो यहाँ पे कैविटी है उसका नाम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, जो ओपनिंग है उसका नाम हाइपोस्टोम है, और डाइजेशन एक्स्ट्रा भी है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी है, दोनों चीजें है। और जो स्केलेटन है उसका नाम कोराल है। और बेटे एक जबरदस्त फेनोमेनन दिखाता है जिसका नाम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसका नाम डायमॉर्फिज्म, जहां एक ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म एज सिलेंडर होंगे और कुछ ऑर्गेनिज्म एज अम्ब्रेला होंगे। एंड नेक्स्ट मेरे बेटे इज 3 differences between polyp and medusa. The first difference is sessile, motile, cylindrical, umbrella, asexually, sexually. And then मेरे बेटे is a typical thing that is the alternation of generation or metagenesis, जहां पे polyp जो होना नहीं चाहिए कन्वर्ट मेडुसा के अंदर हो जाता है। अगर कन्वर्ट मेरे बेटे, उस प्रोसेस को हम कहते हैं alternation of generation। मेरे बेटे दैट्स ऑल अबाउट द Cilian Trata। थैंक यू।